اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ کورونا کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کے لیے فوج اور رینجرز کی مدد حاصل کرنے کی تجویز۔ وفاق اور پنجاب نے ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے سخت سے سخت اقدامات کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے فوج اور رینجرز کی مدد حاصل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ تجویز میں کہا گیا ہے کہ مارکیٹس اور پبلک مقامات پر سیکیورٹی فورسز کو انتظامیہ کے ساتھ گشت کروا کر سخت پیغام دیا جائے گا۔ جن مارکیٹس میں ایس او پیز کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے وہاں سخت ایکشن بھی لیا جائے گا۔ قذافی بٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ قذافی بٹ بتائیے گا، نئی تجویز دی گئی ہے، اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ بالکل جی، بڑے سخت اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک میسج کنوے کرنا چاہ رہی ہے حکومت، اور یہ تجویز دی گئی ہے کہ جس طریقے سے لاک ڈاؤن سے پہلے فوج کو رینجرز کو بلوایا گیا تھا اور ناکوں پر تعینات کیا گیا تھا، اسی طرح دوبارہ ان کی خدمات لی جائیں اور جن مختلف مارکیٹوں کے اندر شہر میں انتظامیہ کے ساتھ ان کا گشت کروا کے یہ میسج دیا جائے گا کہ اگر ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پھر ان کے لیے فوج اور رینجرز جو ہے وہ بھی کارروائی کر سکتی ہے۔ یہ تجویز دی گئی ہے اور یہ طے کیا گیا ہے کہ سخت سے سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ جن مارکیٹس کے اندر ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوگی انہیں بند کرنے کے حوالے سے تو واضح احکامات دیے جا چکے ہیں، لیکن شہریوں کے لیے بھی میسج دیا گیا ہے کہ اگر وہ پبلک مقامات پر اور مارکیٹوں کے اندر ماسک نہیں پہنیں گے، گلوز کا استعمال نہیں کریں گے تو انہیں نہ صرف جرمانے کیے جائیں گے بلکہ ان کے لیے اخلاقی سزائیں بھی تجویز کی گئی ہیں، اور واضح کیا گیا ہے کہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد اب ہر صورت میں کروایا جائے گا۔ جی قذافی بٹ صاحب ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کی زیر صدارت کورونا پر قائم کابینہ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ پہلے مرحلے میں پنجاب میں ڈریب سے منظور شدہ 1000 انجیکشنز خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان اور وزیر صنعت میاں اسلم اقبال نے شرکت کی۔ چیف سیکرٹری اور سیکرٹری صحت نے صوبے میں کورونا کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پہلے مرحلے میں پنجاب میں ڈریب سے منظور شدہ 1000 انجیکشنز خریدے جائیں گے۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں، حکومت تمام وسائل بروئے کار لائے گی، تمام پبلک مقامات پر ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ہر شہری کو کورونا وائرس کی شدت کا احساس ہو چکا، ذمہ داری بھی نبھائیں، شہری پارکس میں بچوں کو ساتھ نہ لائیں اور ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ سینئر وزیر نے ہدایت کی ہے کہ جہاں خلاف ورزی ہو وہاں سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے۔ بازاروں میں طے شدہ اوقات میں ایس او پیز کے ساتھ سرگرمیاں جاری رکھی جائیں۔ نرمی کے زیادہ نقصانات سامنے آئے تو دوبارہ سے سختی کا سوچ سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے اہم اجلاس ہوا ہے جس میں عوام کے لیے اہم ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ کورونا کی سنگینی کے حوالے سے مزید بات کریں تو لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 1082 کورونا کے نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں کورونا سے 10 افراد دم توڑ گئے۔ 84 روز میں لاہور میں کورونا کے 17,411 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ کورونا سے شہر میں مجموعی طور پر 237 اموات ہو چکی ہیں۔ ترجمان کی جانب سے یہ اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں جس کے مطابق پنجاب میں کورونا کے 2164 نئے کیسز ہیں اور کل تعداد 35,308 ہو چکی ہے۔ پنجاب میں کورونا وائرس سے 30 اموات ہوئی ہیں اور کل تعداد 659 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد 7,953 ہو چکی ہے۔ ترجمان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ سابق صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کو بھی کورونا وائرس ہو گیا ہے، اپنے آپ کو گھر میں کوارنٹین کر لیا ہے۔ جی بالکل، اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ سابق صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کو بھی کورونا وائرس ہو گیا ہے، اپنے آپ کو گھر میں کوارنٹین کر لیا ہے۔ اس پر بات کریں گے عمر اسلم سے۔ جی عمر اسلم بتائیے گا۔ جی، مسلم لیگ نون کے رہنما سابق صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کو بھی کورونا وائرس ہو گیا۔ خواجہ سلمان رفیق کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ چند دنوں میں خصوصاً خواجہ سلمان رفیق نے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ خواجہ سلمان رفیق نے مختلف اسپتالوں میں جا کر جو ہے وہ میاں شہباز شریف کی ہدایت پر ڈاکٹرز کو حفاظتی لباس تقسیم کیے تھے، جبکہ اپنے حلقے میں بھی
जो है वो काफ़ी मुतहरक रहे थे, राशन तकसीम किया, इसके अलावा कई लीगी कारकुनान से मुलाकात भी करते रहे थे। इसी हवाले से ये भी बताते चले कि मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा रुकने सूबाई असम्बली सैफुल मलूक खोकर को भी कोरोना वायरस हो गया है, जबकि उनके बेटे जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर फैसल सैफ खोकर का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। दोनों लीगी रहनुमाओं ने अपने आप को जो है वो अपनी रिहाइश गाह पर करंतीनिया कर लिया है, जबकि इसी तरीके से जो मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली हैं चौधरी यासीन सोहल, उनके भी दो बेटे चौधरी अशारिफ सोहल एडवोकेट और चौधरी हारिस सोहल एडवोकेट को भी कोरोना वायरस हो गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं करें। उनका कहना है कि कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और शहरियों को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं ताकि इस मूजी वायरस से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि शहर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में निजी कंपनीज के पेट्रोल पंप्स ड्राई हो गए हैं। शहरियों को पेट्रोल के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। बुजदार सरकार और जिले इंतजामिया हाथ पर हाथ धरे बहरान खुद खत्म होने का इंतजार करने लगी है। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान को 5 रोज बीत गए। मुतअद्दिद इलाकों में ज्यादातर निजी कंपनियों के पेट्रोल पंप्स ड्राई हो गए। शहरी पेट्रोल की तलाश में ख्वार होते रहे। शहरियों ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए पेट्रोल बहरान की जिम्मेदारी तब्दीली सरकार पर डाल दी। मेरी कोई पार्टी नहीं है, ये नहीं कि मेरी इमरान खान या मेरी नवाज शरीफ है, लेकिन जो नीचे वाले पार्टी में सारी 2 नंबर है, ये खुद जान के पेट्रोल नहीं दे रही है। कह रहे हमें 15-20 रुपए लीटर के बचे, ये 2 रुपए पे इनका पेट भरता नहीं है। मिल रहा पेट्रोल भाई 2-3 दिन से हम यहाँ पे खज्जा खराब हो रहे हैं। पेट्रोल नाम की यहाँ पे कोई चीज नहीं, ये बात नहीं है कि इनके पास पेट्रोल नहीं है। LDA ताजपुरा स्कीम के इलाके में वाक़े PSO पंप भी 5 रोज से सप्लाई न होने के बायस बंद है। इसी तरह शादमान और लालपुर पर वाक़े शेल कंपनी के पेट्रोल पंप्स पर भी नो सप्लाई के बोर्ड आविजा नजर आए। शहरियों ने कहा कि पेट्रोल सस्ता होने के फायदे की बजाय उनके हिस्से में खवारी आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान मामले की संगीनी का नोटिस लें। सोचना चाहिए, हम क्या कह सकते हैं। अब सस्ता हो गया, अब हमें पेट्रोल भरवाने नहीं दे रहे। पेट्रोल 3-4 दिन हो गए बिल्कुल नहीं मिल रहा बड़चोंग में, पूरे लाहौर में नहीं मिल रहा, तो हम तो पैदल जा रहे हैं, आपके सामने ही है। पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान से शहर की कारोबारी बरादरी भी तब्दीली सरकार से नाला नजर आई। ताजरों का कहना था क्या वफाकी हुकूमत ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सामने हार मान ली है, जो बहरान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। साथी रिपोर्टर फारान यामीन और कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, शहरी पेट्रोल को तरस गए हैं। शहर के मुताबिक पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं। पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी ख्वार हो गए, जबकि जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फरामी है वहां तवील कतारें लगी हुई हैं, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, शहरी पेट्रोल को तरस चुके हैं। शहर के मुताबिक पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं और पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी ख्वार हो गए, जबकि जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फरामी है वहां शहरियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और इंतजार की कोफ्त में मुब्तला हैं। बिल्कुल, हमारे साथ इसी हवाले से हसन अली मौजूद हैं, साथ ही साथ जमालुद्दीन जमाली भी मौजूद होंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे हसन खालिद का। हसन खालिद, बताएगा पेट्रोल पंप पे आप इस वक्त मौजूद हैं, शहरियों की जानिब से क्या शिकायत की जा रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। लाहौर में हुकूमत पंजाब की नाअहली के बायस पेट्रोल का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। यही वजह है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो कायम पेट्रोल पंप्स हैं वो अव्वल तो बंद दिखाई दे रहे हैं, और जो पेट्रोल पंप्स खुले हैं जहाँ पर पेट्रोल की दस्तयाबी बनाई जा रही है वहाँ पर भी इस वक्त तवील लंबी कतारें लगी हुई हैं और शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरा कैमरामैन शाहिद अगर आपको दिखा सके तो आप इस वक्त मेरे पीछे पेट्रोल के मनाजिर देख सकते हैं कि यहाँ पर फैमिलीज़ अपने बच्चों के हमरा पेट्रोल डलवा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि किस कदर रश है इस पेट्रोल पंप के ऊपर। आज हालांकि हफ्ता है और शहर के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो मार्केट्स हैं वो बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल की किल्लत जो है वो बरकरार है। और सूरत हाल ये है कि पेट्रोल अगर दस्तयाब है भी तो मोटर बाइक्स वालों को 200 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, और इसके अलावा जो गाड़ियों वाले हैं उनको 500 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। लोग अपनी फैमिलीज़ के हमरा मीलों का सफ़र तय करने के बाद आधा घंटा खड़ा होने के बाद जो है वो पेट्रोल डलवाने पर मजबूर हैं, और उसके बाद उनको जो है वो पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। शहर के 70% पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके हैं, और जिन पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल दस्तयाब है वहाँ भी सूरत हाल ख़राब है। भाईजान मेरे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बताइएगा कि कितना टाइम लगा आपको पेट्रोल डलवाने में? काफ़ी टाइम लग गया।
बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अच्छा, काफ़ी पेट्रोल पंप शहर के बंद है, क्या कहेंगे? ये जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत ज़्यादा जुल्म है। कुछ और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मुझे बताइएगा कितनी देर लगी है आपको? सर आधे घंटे से खड़े हैं, आधे घंटे से खड़े हैं। आप कितना सफ़र तय करके आ रहे हैं? कितने पेट्रोल पंप शहर के बंद नज़र आए हैं आपको? तकरीबन बदामी बाग से लेकर यहाँ तक सब बंद है, यहाँ यही है खुला, बस पेट्रोल डलवाने के लिए इधर आया हूँ। पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, तो क्या कहेंगे, हुकूमत कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? हुकूमत क्या एक्शन ले, जब से बैठा हुआ तब से अजाब में फंसे हुए हम। इमरान खान हुकूमत की बेबसी और हुकूमत की नाअहली के ऊपर शहरी जो है उनका यही कहना है कि हम मजबूर हो गए हैं, हुकूमत इतनी नाअहल है कि हम लोग मीलों का सफ़र तय करने पर मजबूर हो गए हैं। तकरीबन 70% शहर के पेट्रोल पंप्स बंद हैं और जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है वहाँ भी कई घंटे इंतज़ार करने के बाद उनको पेट्रोल मिल रहा है। मोटर बाइक्स वालों को 200 रुपए से ज्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, जबकि इंतजार की सूली पर लटके रहने के बाद शहरियों को पेट्रोल की फराहमी मुमकिन बनाई जा रही है। हमारे साथ ही रहिएगा हसन खालिद, जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या हालात हैं। जमालुद्दीन जमाली बताएगा, इस सख्त परेशानी का सामना है इस वक्त लोगों को, घंटों कतारों में लगने के बाद इनको पेट्रोल की फराहमी जो है वो दी है, और इस हवाले से हुकूमत ने अभी तक क्या एक्शन लिया है, क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, शहर के अंदर पेट्रोल का बहरान शदीद तर शक्ल इख्तियार कर गया है और शहरियों के लिए पेट्रोल की तलाश जो है दिन भर का सबसे बड़ा काम बन गया है। गाड़ियों और मोटर बाइक्स के लिए पेट्रोल हासिल करने के लिए शहरी एक इलाके से दूसरे और दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं और जगह जगह उनको पेट्रोल पंप जो है वो बंद मिल रहे हैं। हुकूमत का जो रोल होता है, उसकी जो प्रेजेंस होती है इंतज़ामी उमूर के अंदर, वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। पेट्रोल की सप्लाई के अंदर जो है वो तातुल पैदा हुआ, उसको हुकूमत जो है मेक श्योर कर सकती थी कि ऐसा ना हो। और पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में कम हुई, यहाँ भी पेट्रोल की कीमत में कमी हुई। ये अवाम के लिए खुशी का मौका बन सकता था अगर हुकूमत जो है पेट्रोल की सप्लाई को यकीनी बना सकती, मगर अब पेट्रोल सस्ता हुआ मगर वो दस्तयाब नहीं है और नायाब होके रह गया है शहरियों के लिए। तो अब हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है और उसकी जो मौजूदगी है पूरे इस इंतज़ामी स्ट्रक्चर के अंदर, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि हुकूमत को पेट्रोल की सप्लाई को यकीनी बनाना चाहिए था कि अगर पेट्रोल सस्ता हुआ है तो शहरियों की दस्तयाब भी हो। जब हमें जगह जगह पेट्रोल पंप जो है बंद नज़र आते हैं तो मायूसी होती है और शहरी सवाल उठाते हैं कि ये पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, इसका सस्ता होना ही शहरियों के लिए अजाब बन गया है। जब शहरी जो है ख़ास तौर पे जो बाइक वाला है, उसका अगर रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाए और वो अपनी बाइक को खींच कर एक इलाके से दूसरे इलाके में जब जाता है और जगह जगह पेट्रोल पंप उसको बंद मिलते हैं तो वो बहुत नाखुश होता है और सवाल उठाता है कि उसका क्या कसूर है। सस्ता होने पे खुशी होनी चाहिए थी, मगर अब वो अपनी बाइक खींचता फिर रहा है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप मेरे पीछे अब बंद नज़र आ रहा है, हू का आलम है यहाँ पे। ये देखें, खूबसूरत पेट्रोल पंप जो है अब बंद पड़ा है, इस पर पेट्रोल नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ पे इस पेट्रोल पंप को आज बंद नहीं होना चाहिए था। पेट्रोल अगर जो है उसकी सप्लाई की नहीं हुई, इस हवाले से मामलात को हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए था। ये आज का नहीं है, इससे कई दिन पहले से ये बहरान जो है वो शुरू है और इस पे काबू नहीं पाया गया। यहाँ पे हुकूमत को फौरी एक्शन लेना चाहिए। नहीं पाया जा सका, एक रिलीफ था जो कि आवाम के लिए जहमत बन चुका है। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ हसन खालिद ने हमें तफसीलन अपडेट किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। महंगाई से सताई अवाम में बुरी खबर है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन ने आटे के 20 किलो थैले की कीमत में मजीद 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। शहर में 20 किलो का थैला 1000 रुपए से जायद में फरोख्त होता रहा। महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसियां या फ्लोर मिल्स मालकान की हट धर्मी। आटे का 20 किलो का थैला मजीद 50 रुपए महंगा कर दिया गया। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 975 रुपए कर दी गई। तहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आटे का 20 किलो का थैला 1000 रुपए से जायद में फरोख्त होने लगा, जबकि गुज़िश्ता 10 रोज में आटे की कीमत में दूसरी मरतबा इजाफा कर दिया गया। 10 रोज कबल आटे का 20 किलो का थैला
805 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 170 रुपए का इजाफा किया गया। शहरियों का कहना है कि पीटीआई ने अवाम को महंगाई कम करने के जो सब्ज बाग दिखाए वो सब झूठ थे। रियासत मदीना सिर्फ नाम की रह गई है, अब रियासत मदीना कहाँ है? मैं इस हाकिम वक्त से पूछता हूँ कि वो कहाँ है रियासत मदीना का दावेदार, जिसने इस मुल्क के बेड़े को उठाने का वादा तो किया था, लेकिन आज ये आवाम अपने भूख और अफलास की ज़िंदगी के अंदर ही मर रही है। जो करिंदे इमरान खान के हमसे वोट मांगने आए थे, आज वो कहाँ गए हैं? आटे की कीमत 820 रुपये से लेके 1000 रुपये पे चला गया तोड़ा। हुकूमत का कोई भी नामो निशान नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। 805 रुपये का मिल रहा था थैला पहले, अब भाई 1000 से ऊपर की नर्क हो गई है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार का कहना है कि आटे की कीमत में इजाफा महकमा खुराक पंजाब की नाकिस पॉलिसियों के बायस हुआ। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी जो परचेज है वो फिलफौर बंद कर दे, क्योंकि अब उनके पास वीट बहुत थोड़ी तादाद में आ रही है, और साथ साथ इसके लिए कोई मुस्बत इकदाम उठाए कि अपनी जो उनके पास वीट पड़ी है उसका इशू रेट अनाउंस करें और उसको फ्लावर मिल को सस्ते दामों या जिस रेट पे भी दे गंदम, उसी रेट पे फिर आटा फरोख्त होने लग जाएगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम की कीमतों में इस्तेहकाम ना होने पर आने वाले दिनों में आटे की कीमत में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। हसन अली, सिटी 42। प्रॉपर्टी टैक्स चोरों को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए शहर के पॉश इलाकों में नए घरों और पहले से मौजूद प्रॉपर्टी यूनिट्स का इलाके की वैल्यू के मुताबिक टैक्स के निफाज के हवाले से डायरेक्टर रीजन बी ने शहर के ईटीओस को मरासला जारी कर दिया है। 30 जून से पहले अपने अपने इलाकों में सर्वे करके रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। इस पर बात करेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत की जानिब से रमा साल प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ कर दिया गया, लेकिन डायरेक्टर रीजन बी लाहौर रिजवान शेरवानी की जानिब से लाहौर के तमाम ईटीओज़ को मरासला लिखा गया है कि शहर के पोश इलाकों में जहां पर नए घर बने हैं या ऐसे एरियाज़ जो कि कमर्शियल हैं लेकिन प्रॉपर्टीज़ को डोमेस्टिक टैक्स वसूल किया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो रेंटेड प्रॉपर्टी हैं और उनको प्रॉपरली असेस नहीं किया गया, उन तमाम जो बिल्डिंग्स हैं उनको चेक किया जाए और प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के लिए इन तमाम एरियाज़ को टैक्स नेट में शामिल किया जाए। डायरेक्टर रीजन बी की जानिब से तमाम ईटीओज़ को हदायत जारी की गई हैं कि 30 जून से पहले तमाम जो पोश इलाके हैं वहाँ पर जो टीमें हैं वो सर्वे करें और तमाम घरों का रिकॉर्ड चेक करें जहाँ पे टैक्स चोरी हो रहा है उसका टैक्स जो है वो प्रॉपर ठीक किया जाए, और इसके साथ साथ अगर कोई एक्साइज के मुलाजमीन इसमें मुलव्वस हुए तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। टैक्स चोरों को टैक्स नेट में लाने के लिए ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है, और डायरेक्टर रीजन बी रिजवान शेरवानी का कहना है कि अगर प्रॉपरली इस सारे काम को मुकम्मल किया गया तो कम अज़ कम 30 से 40 करोड़ का महकमा एक्साइज को फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया अली साही, हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब अनारकली बाजार में लॉकडाउन की खिलाफवर्जी का सिलसिला दिन भर जारी रहा। कपड़ों और जूतों के आर्जी स्टॉल सजाए गए। एसओपीज को नजरअंदाज किए शहरी बिला खौफ और खतर शॉपिंग करते रहे। पंजाब हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 5 रोज कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए कारोबार करने की इजाजत दी गई, जबकि हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन के अहकामात हैं। मगर अनारकली बाजार में आरजी स्टॉल्स होल्डर्स ने हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। आरजी स्टॉल्स पर फैमिलीज बच्चों के साथ शॉपिंग करती रही। आरजी स्टॉल होल्डर्स ने भी गिले शिकवों के अंबार लगा दिए। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत कम अज कम एतवार के रोज स्टॉल्स लगाने की इजाजत दे ताकि वो भी अपने बच्चों का रिज्क कमा सकें। सर हमारी सी डिमांड यही है कि दुकानदार तो 5 दिन चलो अंदर बैठ के कमा लेता है, हम लोग लगाते हैं बाहर स्टॉल, हमें तो सख्ती है बाहर लगाने से भी। तो रिक्वेस्ट यही है कि हमें एक दिन के लिए संडे को दे दें, सिर्फ कि संडे को 10 से लेकर 7 बजे तक 6 बजे तक का टाइम दे दें, ताकि उससे हम भी अपने घर के बच्चों के लिए कुछ बेहतर रोटी ले जाएं, हलाल की रोटी लेके जाएं। अनारकली बाजार बज़ाहिर तो बंद रहा, मगर ताजरों की कसी तादाद बंद दुकानों के सामने खड़ी नजर आई। ताजर ग्राहकों को शटर उठाकर शॉपिंग भी कराते रहे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
ईद के दौरान की गई बेएहतियाती के असरात आना शुरू हो गए हैं। कोविड-19 के मुस्बत केसेस की शरह में 4% तक का इजाफा हो गया है। सरकारी डेटा के मुताबिक यकम रमजान पर मुस्बत केसेस की शरह 6.8% थी, लेकिन ईद पर मार्केट्स खोलने और SOPs पर अमल दरामद न करने से कोरोना के मुस्बत अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और ईद के बाद मुस्बत केसेस की शरह 7.12% पर पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान में कोरोना से रिकवरी रेट 7.34% और पंजाब में कोरोना से रिकवरी रेट 5.22% है। इसी तरह डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना का डेथ रेट 1.2% और पंजाब में कोरोना का डेथ रेट 9.1% है। माहिरीन ने अगला हफ्ता कोविड-19 के केसेस के हवाले से इंतहाई अहम करार दे दिया है। माहिरीन के मुताबिक अगले हफ्ते से ईद के दौरान की गई बेएहतियाती की पीक शरह मुतवक्के है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के सदर डॉक्टर सलमान हसीब का कहना है कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए मख्तस बेड्स भर चुके हैं। मुश्तबा मरीजों को 7 रोज तक टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं दी जाती। मजीद कहा कि MBBS फाइनल सप्लीमेंट्री इम्तिहानात कैंसिल करने की शदीद मजम्मत करते हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर सलमान हसीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अस्पताल भर चुके हैं। कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि आप घरों में क्वारंटीन हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट के अस्पताल तब तक टेस्ट नहीं कर रहे जब तक आप अस्पतालों में एडमिशन नहीं ले लेते। हुकूमत की ये जो मुतज़ाद पॉलिसियाँ हैं, हम ये समझते हैं कि उसमें घबराना एक आम फितरी अमल है और इस वक्त पूरे सूबे में एक क्यास है, एक परेशानी है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक पंजाब के अस्पतालों में 40% तक अमला खुद कोरोना का शिकार है। सबसे बढ़कर जो NCOC के स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, हम ये समझते हैं वो हकाइक पर मुबनी नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा है कि वेंटिलेटर्स जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, तो मैं ये बता दूं कि जो डॉक्टर्स बीमार होके आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स की फैमिलीज बीमार हो रही हैं, उनको वेंटिलेटर्स मुहैया नहीं हो रहे, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि मरीजों के लिए और आम लोगों के लिए वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत की बदलती पॉलिसियों की वजह से अवाम ने भी SOPs का ख्याल करना छोड़ दिया है। अवाम के रवैये से हेल्थ वर्कर्स का जज्बा पस्ती का शिकार हो गया है। MBBS के तलबा को प्रमोट किया जाए ताकि अस्पतालों में हाउस ऑफिसर्स की कमी को पूरा किया जाए। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। शहरियों को ट्रैफिक चालान जमा कराने के लिए अब लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने जुर्माने की अदायगियों के लिए सिस्टम मुतारिफ करा दिया है। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं अली अकबर की रिपोर्ट। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी के लिए सिस्टम और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टाइमिंग शेड्यूल निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। अब ट्रैफिक जुर्मानों के लिए ऑनलाइन अदायगी से अवाम को आसानी होगी। ऑनलाइन टाइमिंग शेड्यूल के जरिए शहरी लाहौर के 18 ड्राइविंग सेंटर्स में घर बैठे लाइसेंस के हसूल के लिए वक्त और तारीख हासिल कर सकेंगे। सिस्टम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए ऑनलाइन टाइम शेड्यूल का दायरा कार भी दीगर शहरों तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रैफिक वार्डन्स की हौसला अफजाई की जाएगी, जबकि इनकी प्रमोशन और दीगर मसाइल हल किए जाएंगे। सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर ट्रैफिक पुलिस को जुर्मानों की सिस्टम इजरा पर मुबारकबाद दी। कहते हैं जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना हमारी पॉलिसी है। शहरी ये सहूलत रास्ता ऐप, वेब पोर्टल और कमाल सेंटर के जरिए हासिल कर सकते हैं। IG पंजाब पुलिस, एडिशनल IG ट्रैफिक, CCPO लाहौर, चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, सेक्रेटरी इत्तलात, CTO लाहौर और मुतल्लिका हुकाम ने इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा अली अकबर, सिटी 42। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि मास्क ना पहनने पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। 2 रोज के दौरान 1500 से ज्यादा शहरियों के चालान किए गए हैं। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज बिना मास्क ड्राइविंग पर 1000 शहरियों को चालान टिकट जारी किए गए हैं। पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि आज 513 शहरियों को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर चालान टिकट जारी किया गया है। इस सूरत हाल में मौजूद क्या है फखर इमाम ने, उनसे मजीद जान लेते हैं। फखर इमाम, शहरियों को चालान किया जा रहा है SOPs फॉलो न करने पर? बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत की जानिब से SOPs भी जारी किए गए थे और लाजमन मास्क को लाजमी करार दिया गया था, खासतौर पर जो शहर में सफ़र करने वाले हैं, मोटरसाइकिल सवार और इसके साथ कार सवार अफराद हैं, उनके लिए। तो इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी हदायत जारी की गई थी कि जो अफराद जो है कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, जो मास्क नहीं पहन रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस हवाले से 2 रोज के दौरान 1500 के करीब
جو چلان ہیں وہ ہو چکے ہیں ٹریفک پولیس نے جو کیے ہیں، جبکہ ٹریفک پولیس کی جانب سے جو بتایا گیا ہے اس میں گزشتہ روز بنا ماسک کے ڈرائیونگ کے دوران تقریباً 1000 شہریوں کے قریب چلان کیے گئے تھے، اور آج 513 سے زائد افراد ہیں اور ایسے شہری ہیں جو کہ کورونا SOPs کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور ماسک نہ پہننے پر جن کے چلان کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے CTO لاہور کا کہنا ہے کہ کسی بھی صورت میں شہری حکومتی SOPs کی خلاف ورزی اگر کریں گے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، فخر امام آپ نے ہمیں آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ریلوے پولیس کے 6 اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کو میرٹ اور سینیورٹی کی بنیاد پر سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ ترقی پانے والوں میں ارسلان بٹ، مقصود احمد، احمد نواز، ریاض احمد، شاہد محمود اور صفدر حسین شامل ہیں۔ انسپیکٹر جنرل پاکستان ریلوے پولیس عارف نواز خان نے ترجمان ریلوے پولیس ارسلان بٹ کو پروموشن رینک لگایا۔ ریلوے پولیس لاہور ڈویژن کے پروموٹ ہونے والے افسران کو AIG ایڈمن پاکستان ریلوے پولیس ملک محمد عتیق نے پروموشن رینکس لگائے۔ اس موقع پر IG ریلوے پولیس عارف نواز خان نے کہا کہ ریلوے پولیس میں ٹائم فریم کے مطابق پروموشن کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ مالی سال 2020-21 کے لیے وفاقی بجٹ کی تیاریاں، تاجروں اور صنعتکاروں نے وفاقی حکومت سے بجٹ میں کورونا ریلیف پیکج کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آئندہ مالی سال 2020-21 کے لیے وفاقی حکومت نے کمر کس لی، جبکہ تاجروں اور صنعتکاروں نے حکومت سے کورونا ریلیف پیکج کا مطالبہ کر دیا۔ ٹاؤن شپ انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے چیئرمین اعظم چودھری کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث ملکی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ وفاقی حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صنعتکاروں کو بجلی اور گیس کے بلوں میں ریلیف دینے کے ساتھ ساتھ شرح سود کو 5% تک لائے تاکہ صنعتیں چلیں۔ اعظم چودھری کا کہنا تھا کہ آئندہ مالی سال میں حکومت امپورٹ ڈیوٹی میں کمی کرے تاکہ خام مال بآسانی امپورٹ کیا جا سکے۔ گورنمنٹ امپورٹ ڈیوٹیز کم کرے تاکہ باہر سے جو خام مال پورے پاکستان کو مختلف انڈسٹریز کے اندر جو مہیا کیا جاتا ہے اس کے ریٹ کم ہو تاکہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو سکے۔ یہاں پہ آلریڈی انڈسٹری ان 3 مہینوں کے اندر بہت زیادہ سفر کر چکی ہے۔ دوسری طرف کار لائن سے وابستہ افراد نے بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ریلیف کے لیے امیدیں باندھ لی ہیں۔ انجمن تاجران کار ڈیلرز جیل روڈ کے چیئرمین چودھری ادریس کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کے باعث جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اس میں تاجروں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ حکومت بینکوں سے لین دین پر ود ہولڈنگ ٹیکس کا خاتمہ کرنے کے ساتھ ساتھ پنجاب میں ٹوکن ٹیکس اور گاڑیوں پر عائد دیگر ٹیکسوں میں کمی کرے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ کم سے کم ٹیکسز لگائیں اور زیادہ سے زیادہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو ریلیف دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ کم از کم جتنے بھی بے روزگار لوگ ہیں ان کے اوپر بھی یہ سوچیں کہ جو اس انڈسٹری سے متعلق اس کار لائن کے متعلق جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان کے متعلق بھی یہ سوچیں۔ صنعتکاروں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران انہوں نے حکومت کا مکمل ساتھ دیا تھا، اب حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کا بھی خیال رکھے اور بجٹ میں ریلیف دے۔ حسن علی، سٹی 42۔ ڈیپٹی سیکریٹری جنرل مسلم لیگ نون عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ حکومت ہر شعبے میں ناکام ہو چکی ہے۔ شہباز شریف کے گھر پر دھاوا بولا گیا، خواجہ عمران نذیر پر تشدد کیا گیا، اب کارکنان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی بھرپور خواہش تھی کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا جائے اور اس کا خمیازہ پنجاب پولیس نے بھگتا۔ DIG آپریشن لاہور اور DIG انویسٹیگیشن لاہور کو شہباز شریف صاحب کو گرفتار نہ کرنے کی صدا دی گئی اور دونوں کو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ جس طریقے سے پولیس نے دھاوا بولا پنجاب پولیس نے 96H ماڈل ٹاؤن پر ہمارے لاہور کے جنرل سیکرٹری خواجہ عمران نذیر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، فیملی سیکشن میں گھس گئی پولیس، 400 پولیس اہلکار تعینات تھے، کرونا کی وبا کے دوران 400 پولیس اہلکار تعینات تھے۔ ریلوے کا خسارہ استفا پچھلے سالوں کے مقابلے میں دگنا ہو چکا ہے۔ ابھی تک جو مسافر جھلس کے شہید ہوئے تھے ان تحقیقات کا کچھ نہیں بنا، نہیں سامنے۔ دوسری جانب وزیر ریلوے شیخ رشید کی شریف برادران کی سیاست پر کڑی تنقید، ایک لندن میں چائے پی کر ناخوش ہے تو دوسرا لیٹ کر منتیں کر رہا ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے ایک بار پھر توپوں کا رخ شریف فیملی کی طرف کر لیا۔ بولے شہباز شریف جیل جائیں گے، ان کا کیس سنگین ہے۔ جب نیب کا چھاپا پڑا شہباز شریف گھر میں ہی چھپے تھے۔ شہباز شریف کو کہا تھا واپس مت آنا، مارے جاؤ گے۔ شہباز شریف گھر میں ہی تھے
पिछले कमरे में छुपे हुए थे। शहबाज शरीफ एक सोच रख रहे हैं, वो अपनी विकेट जो है ना दोनों तरफ खेलने के आदी हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मियां नवाज शरीफ की तस्वीर पर ना जाएं। मियां नवाज शरीफ से कोई पूछे उन पर क्या गुजर रही है। उन्होंने कहा कि कायद नून लीग की मेडिकल रिपोर्ट्स पर कुछ रेगमाल जरूर फेरा गया है। मेडिकल रिपोर्टों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रेगमाल जरूर मारा गया है। कोई रेगमाल 6 नंबर का लगाया गया है क्योंकि वहां जाके प्लेटें ठीक थी। शेख रशीद के बयान पर राना सनाउल्लाह ने उन्हें आड़े हाथों लिया। सवाल किया कि वजीर किस हैसियत से ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी का बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट से शेख रशीद की धमकियों का नोटिस लें। उनका कहना था कि मुल्क पर करप्ट, निखट्टू, नालायक और नाहल वज़ीर-ए-आज़म मुसल्लत इमरान न्याजी के चपड़ासी की सियासत चारों तरफ खेलने पर मबनी है। अपनी करप्शन छुपाने के लिए मुखालिफिन पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इसीलिए रेल मुसाफिरों का कातिल रेगमाल की वजह से मुकदमात से बच गया। इचरा में चंद रोज कबल 13 साला बच्ची के साथ गैंग रेप करने वाले तीनों मुल्जिमान को जेंडर बेस्ड क्राइम सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान का डीएनए भी सैंपलिंग के लिए भिजवा दिया गया है। चंद रोज कबल इचरा के इलाके में 13 साला मासूम बच्ची को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया था, जिसका मुकदमा थाना इचरा में दर्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमे की तफ्तीश जेंडर बेस्ड क्राइम सेल को मुंतकिल कर दी है। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं, एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस के 5 मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। मुतासिरा मुलाजमीन को घरों में क्वारंटीन होने की हिदायत जारी की गई हैं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी जवाद याकूब की सरबराही में मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट करवाए गए हैं। जराये के मुताबिक एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस के 64 मुलाजमीन में से 5 का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। कोरोना वायरस का शिकार होने वालों में अतीक, सईद, तारिक, राशिद यूनस और बिलाल अफजल शामिल हैं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब जवाद याकूब ने लॉ अफसरान और मुलाजमीन को कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती इकदामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की तलकीन की है। उन्होंने कहा कि लॉ अफसरान और स्टाफ दौरान ड्यूटी मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करे, समाजी फासले का ख्याल रखने समेत हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करे। सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा और उनके अहले खाना की जानिब से भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम वसूल करने का इंकशाफ। महकमा तालीम ने DPI एलिमेंट्री पंजाब की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब भर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स में पढ़ाने वाले असातिज़ा और उनके अहले खाना की जानिब से भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। महकमा तालीम ने DPI एलिमेंट्री पंजाब की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में रिजवाना खलील प्रिंसिपल गवर्नमेंट कैनेड गर्ल्स हाई स्कूल और लाहौर और एडिशनल DPI एलिमेंट्री पंजाब मेंबरान होंगे। तहकीकाती कमेटी ने पंजाब भर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला जारी कर दिया है। कमेटी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम वसूल करने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ के असातिज़ा के खिलाफ पहले से महकमा तालीम ने कार्रवाई का आगाज़ कर रखा है। बड़ी देर की मेहरबान आते आते हुकूमत कोरोना के मरीजों की जान बचाने वाले इंजेक्शन खरीदने को तैयार, लेकिन इंजेक्शन नापैद हो गए। जान बचाने वाले इंजेक्शन मुल्क में दस्तयाब ही नहीं है। पंजाब हुकूमत बर वक्त इंजेक्शन खरीदने में नाकामी के बाद अब हरकत में आ गई है। इंजेक्शन तैयार करने वाली दवा साज कंपनी के पास भी स्टॉक मौजूद नहीं। कोरोना में जान बचाने वाले टीकों का ताहाल स्टॉक दरामद ही नहीं हो सका। इंजेक्शन की अदम दस्तयाबी से हुकूमत की खरीदारी के फैसले पर अमल दरामद मुश्किलात से दो चार है। इस सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत कोरोना के मरीजों की जान बचाने वाले इंजेक्शन खरीदने को तैयार, लेकिन इंजेक्शन नापैद हैं। जान बचाने वाले इंजेक्शन मुल्क में दस्तयाब ही नहीं। पंजाब हुकूमत बर वक्त इंजेक्शन खरीदने में नाकामी के बाद अब हरकत में आई है। इंजेक्शन तैयार करने वाली दवा साज कंपनी के पास भी स्टॉक मौजूद नहीं है। कोरोना में जान बचाने वाले टीकों का ताहाल स्टॉक दरामद ही नहीं हो सका। इंजेक्शन की अदम दस्तयाबी से हुकूमत के खरीदारी के फैसले पर अमल दरामद मुश्किलात से दो चार हैं। आपको बताएं, हुकूमत अब हरकत में आई है। अब एहसास हुआ है कि कितनी देर हो चुकी है। हुकूमत कोरोना के मरीजों की जान बचाने वाले इंजेक्शन खरीदने को तैयार है, लेकिन इंजेक्शन मुल्क में नापैद हैं। मुल्क में ये इंजेक्शन दस्तयाब ही नहीं है। पंजाब हुकूमत बर वक्त इंजेक्शन खरीदने में नाकामी के बाद अब हरकत में आई है और इंजेक्शन तैयार करने वाली दवा साज कंपनी के पास भी स्टॉक मौजूद नहीं है। कोरोना में जान बचाने वाले टीकों का ताहाल स्टॉक ही दरामद नहीं करवाया जा सका। हुकूमत अब होश में आई है और इंजेक्शन की अदम दस्तयाबी से हुकूमत की खरीदारी के फैसले पर अमल दरामद
मुश्किलात का शिकार हैं। जी बिल्कुल, इस सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। बड़ी देर कर दी बहरबान, आते आते हुकूमत कोरोना के मरीजों की जान बचाने वाले इंजेक्शन खरीदने को तैयार, लेकिन इंजेक्शन नापैद हैं। इस सूरत हाल में ज्वाइन किया है जाहिद चौधरी ने, उनसे जान लेते हैं। जाहिद चौधरी साहब, हुकूमत को अब ख्याल आया इंजेक्शन लेने का जब इंजेक्शन नापैद हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है वो आज ये फैसला किया गया, ये ऐलान किया गया कि वो जो कोरोना के मरीज हैं, जो सीरियस पेशेंट्स हैं, उनकी जान बचाने के लिए एक्सटेमरा इंजेक्शन जो है उसकी 1000 इंजेक्शन खरीदने की जो है वो आज मंजूरी दी गई है। लेकिन हुकूमत के बर वक्त इकदाम न करने की वजह से इस वक्त मार्केट में ये इंजेक्शन नापैद है, बल्कि इंजेक्शन तैयार करने वाली जो बैनुल अक़वामी दवासाज कंपनी है रॉश, उसके पास भी स्टॉक मौजूद नहीं है। अब 1000 इंजेक्शन खरीदने का जो हुकूमत का फैसला है ये अब मुश्किलात से दो चार है, क्योंकि मुल्क में स्टॉक ही दस्तयाब नहीं, तो इंजेक्शन कहाँ से खरीदे जाएंगे। और अब जो फार्मा इंडस्ट्री जिसके उस कंपनी की जानिब से जो है वो ये बताया। ठीक है जाहिद चौधरी साहब, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया।